Our today's class is for 11th and subject is geology earth science. Our today's topic is types of folds. In this class we will try to complete the subtopic what are the types of folds, but in the previous class we have left to understand what is palangafold. We discussed what are folds, what are the parts of folds. Palangafold is one part of the fold जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है. पलंज क्या होता है? बेसिकली पलंज folds are those folds where folding having inclined beds, or we can say inclined beds in the sense the front fold is like this and the back fold of the rock formation or rock structure is like in an inclined position. So the line which is drawn from the front part of the fold to the back part of the same fold is known as axis of the fold or fold axis. So फोल्ड एक्सिस व्हेन इट इज इन एन इंक्लाइंड पोजीशन, जब हम फोल्ड एक्सिस को एक ही फोल्ड में फ्रंट पार्ट के फोल्ड के फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट तक आगे वाले हिस्से फोल्ड के आगे वाले जहां पे रॉक स्ट्रक्चर का आगे वाला हिस्सा है उसके बैक हिस्से तक जो ये लाइन होती है उसको हम फोल्ड एक्सिस कहते हैं. यही लाइन जब इस एक ही फोल्ड के आगे वाले हिस्से और दूसरे वाले हिस्से को जो ये फोल्ड एक्सिस कनेक्ट करती है, अगर ये इंक्लाइंड टाइप की एक्सिस होगी तो इसको हम पलंजाफोल्ड कहते हैं, इस टाइप के फोल्ड को. और अब रहा सवाल व्हाट इज एंगल ऑफ पलंज. अब ये पलंज का एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ पलंज? एंगल ऑफ पलंज का मतलब क्या है? ये एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दिस फोल्ड एक्सिस, ये फोल्ड एक्सिस है, इसके दरमियान फोल्ड एक्सिस के दरमियान और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, जो इस फोल्ड से लेके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दूसरे इसके दरमियान और फोल्ड एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ पलंज. सो एंगल ऑफ पलंज पलंजिंग फोल्ड इसमें दिखाई देता है या पलंजा फोल्ड में. पलंजा फोल्ड फिर से मैं रिपीट करूंगा, पलंजा फोल्ड ऐसा फोल्ड है जिसमें ऐसे फोल्ड्स है जहां पे इंक्लाइंड एक्सिस होगी. एक्सिस जो फोल्ड की है वो इंक्लाइंड होगी. आम तौर पे एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन इसमें इंक्लाइंड टाइप की एक्सिस होती है. जब इसमें इंक्लाइंड टाइप है तो इसको हम पलंजा फोल्ड कहते हैं. पलंजा फोल्ड में ही एंगल ऑफ पलंज बन जाता है. वो फोल्ड एक्सिस, इंक्लाइंड फोल्ड एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान बन जाता है, उसी को हम एंगल ऑफ पलंज कहते हैं. So this was the sub part of the previous class which we have left in the previous, and we have completed in this one part. This is the part of the fold. Now we'll try to understand what are the types of fold. There are two types of folds, anticline and syncline. We can also say that this is an antique fold and this is sys form. So anticline fold is an up fold. It is just an up fold part of this, just like this is a part, one part of this fold. Here when we cut it of only same fold, this is a part of it up, this is up fold, just this is known as antique fold. This antique fold where the limb, the antique fold is a fold, it is up fold where limbs dip, where the limbs dip away from the axis. This is an axis, this is the axis. When the limbs dip away from the axis, so limbs dip away from the axis to either side, that is known as the antique fold. Highest point on the arch of this antique fold is known as crust.
while as when we see in this sink line fold, this dip directions of these limbs are towards the trough part, because the point in downfold or sink fold is a fold which is downfold where the limbs dip towards its lowest point, that is known as trough. So in other words, we can say downfold is a sink fold is a fold which is a downfold where the limbs dip towards the axis. This is axis of fold on either side. So the lowest point on this sink fold is trough, known as trough. And when we see in both, one point is similar, that is in single anticlinal fold, or we can say a single anticlinal fold may range in size from a few centimeters to several kilometers. Similarly, a similar sink linal fold or sink line fold may range in size from few centimeters to several kilometers. If we try to understand in a simple way, टाइप्स ऑफ फोल्ड जो हमारे होते हैं ये दो तरह के टाइप्स हैं, एक तो एंटीक्लाइन फोल्ड्स और दूसरा सिंक्लाइन फोल्ड्स। एंटीक्लाइन फोल्ड किस तरह के फोल्ड्स होते हैं? एंटीक्लाइनल फोल्ड्स में जो एक्स ये एक अपवर्ड फोल्ड होता है। ऑलवेज यू सी व्हेन यू सी दिस zigzag movement, we know folding is the zigzag movement of the rocks, or we can say rock structures. This one is crust, or we can say arch crust, or arch crust, or arch. So these upward folds or these upward folds are known as, these upper type upward folds are known as antique folds. These are up folds. So their limbs always dip up to this level, always dip towards outside, outwards from the axis of fold. So this is anticline. एंटीक्लाइन के बारे में हम बताएंगे। ये एक अप फोल्ड होता है हमेशा, जब इसमें हर वक्त ऑलवेज ये जो डिप होती है, लिम्ब्स होती है डिप आउटवर्ड्स, डिप मीन्स इनकी इंक्लिनेशन होती है हमेशा बाहर की ओर। दोनों साइड में जो डिप होता है अप फोल्ड में, एंटी फोल्ड में हमेशा बाहर की ओर होता है। किसके से बाहर की ओर होता है? ये जो एक्सिस होती है फोल्ड की, इससे बाहर की ओर होती है। अब हम जब बात करेंगे इस कंपैरिजन टू एंटीक्लाइन और फोल्ड कंपैरिजन के, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें अच्छी तरह से जहन में ये चीज जहननशीन हो जाएगी, याद रहेगी, नाखुश करेगी कि एंटी फोल्ड क्या, एंटीक्लाइनल फोल्ड क्या है और सिंक्लाइन फोल्ड क्या है। एंटीक्लाइनल में जब पॉइंट पॉइंट डिफर करेंगे हम, ये अप फोल्ड होता है, ये डाउन फोल्ड होता है सिंक्लाइनल। इसमें जो हमेशा लिम्ब्स जो है वो डिप करती है आउटवर्ड्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फोल्ड। ये जो एक्सिस ऑफ फोल्ड जो होता है, इससे ये आउटवर्ड्स डिप करती है, जो लिम्ब्स होती है आउटवर्ड्स हमेशा डिप करती है। व्हाइल एज इन सिंक्लाइन फोल्ड ये जो लिम्ब्स होती है ऑलवेज डिप टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ फोल्ड। यहां पे बाहर की ओर डिप करते हैं, लेकिन यहां पे जो सिंक्लाइन फोल्ड में लिम्ब्स डिप करती है हमेशा टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ फोल्ड, इसी के ओर डिप करते हैं। यहां उससे बाहर चली जाती है और यहां इसी के पास पहुंच जाती है। सिमिलर
यहाँ पे लिम्बस एक्सिस ऑफ फोल्ड से दूर चली जाती है, बाहर चली जाती है, लेकिन इस सिंक्लाइनल फोल्ड्स में ये जो लिम्बस है एक्सिस ऑफ फोल्ड के पास ही पहुंच जाती है, जहां पे हम इसको ट्रफ का नाम, और एक नाम यहाँ पे होता है ट्रफ, क्योंकि जो ये पॉइंट होता है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट इसका है उसको हम ट्रफ, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। एक खास चीज इनके दरमियान सेम है, इसका साइज भी बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर से लेके बहुत ही बड़ा हो सकता है अक्रॉस किलोमीटर्स। इसी तरह से इसका भी साइज जो है बड़ा हो सकता है सेंटीमीटर से लेके किलोमीटर तक। जो सिंपल आसान है, एंटीक्लाइन हमेशा याद रखिए, जो अपवर्ड फोल्ड होता है उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं, हमेशा जो डाउनवर्ड फोल्ड होता है उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं। इसमें एक्सिस यहाँ होता है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्रस्ट बोलते हैं, इस लास्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। डिप हमेशा एक्सिस ऑफ फोल्ड से इस एंटीक्लाइन में बाहर, और यहाँ पे इसी के पास पहुंच जाता है लिम्बस जो है, डिप इसी के पास पहुंच जाती है, एक्सिस ऑफ फोल्ड सिमिलर है। हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ होता है। लिम्बस आउटवर्ड डिप, यहाँ पे लिम्बस इनवर्ड डिप करती है। सिमिलर सा आसान सा टॉपिक है, याद रखना। और सेम सिमिलरिटी एक है, ये भी किसी रेंज तक बड़ा हो सकता है, ये भी किसी भी फ्यू सेंटीमीटर से लेके किलोमीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट regarding the types of folds. Only two types here we discussed which are in our syllabus, anticline and syncline, which are in our class 11 syllabus. So this was regarding the types of